1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 5 चैप्टर 1 वर्स से 25 वर्स, जेरेमिया 13 चैप्टर 14 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे 1 तिमोथियुस की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन से 25 वचन तक और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 13 अध्याय 14 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा, तेरे वचनों का ज्ञान बुद्धि समझ हम में इतना ज़्यादा लेकर आ कि हमारे अंदर से अज्ञानता दूर हो जाए और हमारे अंदर परमेश्वर के आज्ञा पालन की शक्ति बढ़ती जाए और हम आज्ञा पालन में ऊंचे हो जाए, परमेश्वर की महिमा कर पाए। हमें फिट एंड फिक्स होने वाले रास्ते हमें समझने लगे और हमारा जीवन बदलता जा रहा है और हम ईश्वरीय रचना में हो रहे हैं, ये हमारे अंदर हम देख पाए। हमारे साथ साथ हम औरों की भी उन्नति में हम प्रकट होते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 5 चैप्टर 1 वर्स से 25 वर्स तक पढ़ेंगे। रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन एडमॉनिशिंग, not to ordain any rashly. First verse say, rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters, with all purity. Honor widows that are widows indeed, but if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Now she that is a widow indeed and desolate trusteth in God and continueth in supplications and prayers night and day, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge that they may be blameless. But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Let not a widow be taken into the number under 60 years old, having been the wife of one man, well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation, because they have cast off their first faith, and withal they learn to be idle, wandering about from the house to house, and not only idle, but tattlers also, and busy bodies, speaking things which they ought not. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully, for some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, and that it may relieve them that are widows indeed. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward.
against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses, then that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Some men's sins are open beforehand, going before to judgment, and some men they follow after. Likewise also the good works of some are manifest beforehand, and they that are otherwise cannot be hid. यहाँ पे एक वचन ध्यान रखना, ये सारा ही वचन ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस है, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है हमने. मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेस वैल्यू रखते हैं, नहीं, ये तो पूरी वैल्यू रखते हैं. इसके लिए मैंने अपने शब्दों को इसमें कुछ ऐड भी नहीं किया है. ओके, तो 22 वचन को ज़रा आप ध्यान रखना. जब आप ले हैंड के बारे में सोचते हैं ना, तब आप ध्यान रखना है उसके बारे में कि आपका कारण दिया है परमेश्वर ने, वहाँ अपोस्तल प्रेरित ने वहाँ पर कारण दिया है. प्रेरित जो है, पौलुस प्रेरित जो है, वो उन्होंने कारण दिया है क्यों जल्दी से किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है. बहुत डेंजरस जोन है ये, आपको मालूम होना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए. जल्दी से किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है. क्यों? कि वो दूसरों के पापों में शामिल ना हो जाए, ठीक है, और अशुद्ध ना हो जाए. ठीक है, तो पाप अशुद्धता में बढ़ाता है. तो अगर ऐसा कोई इंसान अंदरूनी जीवन में सही मसीह जीवन नहीं जी रहा है और आप जाकर उसके ऊपर जल्दी से हाथ रख दे, तो उसके अंदरूनी जीवन की गंदगी जो है वो दुष्ट आत्माओं की फैलाई हुई गंदगी रहती है. तो जब आप हाथ रखोगे तो आप उस गंदगी के भागीदार हो जाएंगे और आप भी उस गंदे कामों में शिकार हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके कारण जल्दी से कोई मसीह है बोलकर जल्दी से हाथ नहीं रख देना, क्योंकि उनके अंदर का अंदरूनी जीवन आपको अशुद्ध करने में काबिल हो सकता है फिर इसकी वजह से. ठीक है, वैसे तो अब हम अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज देखते हैं तो ले हैंड हमारे लिए कोई अचंभित करने वाली बात नहीं रही. अब हम आग के गोले बन चुके हैं. ओके, किसी के अंदर अशुद्धता है तो वो अशुद्धता को आग पकड़ लेगा हमारे हाथ रखने से. आमीन. तो अब परमेश्वर की आग बढ़ चुकी है, इसके लिए हमको हियाव के साथ अशुद्ध से दूर भी होने का रास्ता मिल चुका है. हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर से पहले पवित्र आत्मा के आग में अपने आप को विश्वास में उठा लेना है, फिर जाकर हाथ रखना है. तो वो उनके अंदर की अंदरूनी गंदगी जल जाएगी और आपके हाथ रखने से उनके अंदर शुद्ध पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा. हालेलुया. तो हमने ध्यान रखना है, ऐसा जीवन हमारे चाल चलन में हमने तैयारी के साथ रहना है. हाथ रखने का अवसर आता है हमारे पास. ओके, हमने अपने अंदर की शुद्धता बरकरार रखना है और पवित्र आत्मा के आग से अपने हाथ को, अपने शरीर को भरते रहना है. ठीक है, हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से पहले तिमोथियुस की पत्री 5 अध्याय 1 वचन से 25 वचन. विश्वासियों के प्रति जिम्मेवारियां पहले वचन से. किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे. आमीन. उन विधवाओं का
जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोती हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। हालेलुया। अगर समझो आप अकेले जीवन बिता रहे हैं तो एक विधवा में और आप में फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पति है लेकिन आप पति के साथ रह नहीं पाएंगे कुछ वजह से, तो आप अकेले हैं, तो विधवा में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। समझ में आया? आप चाहे शादी किए हुए हो या नहीं किए हो, लेकिन आप अकेले जीवन जी रहे हो तो भी आप विधवा के समानता में हो जाते हैं। आप उसकी चाल चलन को सीख लीजिए, कैसा रहना है, इस तरह से रहना है। वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। हालेलुया। आपको पता है ये बात, जो दानियेल था वह खोजा बनाया गया था। हाँ, जब बेबीलोन के बादशाह उसको बंदी बनाकर लेकर गए थे, तब वो बंदी में जो लोग लाए गए थे, उनके अंदर से जो उनकी काम करने के लिए उनको पोजीशंस दिए गए थे, बादशाह ने पोजीशंस दिए थे, उसमें दानियेल खोजा कर दिया गया था। ओके, तो दानियेल का खोजा होने का मतलब क्या था कि उसको कोई भी प्रकार से उसके पर्सनल लाइफ का लगाव नहीं रहेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको, कुछ भी पर्सनल चीज़ें उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। हाँ, फिर उसका पोटेंशियल जो है, उसकी शक्ति, उसका हुनर अपने पर्सनल फ़ायदे के पीछे नहीं जाएगा। घर बनाने में, मैरिज करने में, बच्चों में या और कुछ फ्यूचर बनाने में उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसकी ताकत, उसकी शक्ति पूर्ण रूप से बादशाह के काम आ जाएगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम जब अकेले हैं, ओके, हम हमारे पति के साथ नहीं है, या हम अपने कोई कारण से हम अविवाहित हैं, कुछ भी हो, जो भी हो, वी डोंट केयर, उसका कोई भी कारण क्यों ना हो, अकेले हैं, तो हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हमारे मन के अंदर ऐसी कोई अभिलाषा जड़ नहीं पकड़ लेनी चाहिए जो हमको हमारे पर्सनल गेन के पीछे, पर्सनल फ़ायदे के पीछे दौड़ाने लगेगी। समझा? हमको पर्सनल फ़ायदे भुलाना है, पर्सनल प्रॉफिट्स भूल जाना है हमको। हम अकेले हैं ना, तब हमको पर्सनल जो फ़ायदे होते हैं, जो पर्सनल हमारे जो भी इरादे होते हैं, मकसद होते हैं, ज़रा उसको ढीला कर देना है, छोड़ देना है, उसको भूल जाना है। कैसे भूलेंगे? परमेश्वर के ऊपर हमारी आशा रखनी है। हाँ, और परमेश्वर में रात दिन विनतियाँ और प्रार्थना में लौलीन रहना है। हालेलुया। और किसी के सहारे आप नहीं हो, केवल परमेश्वर के सहारे हैं। आप इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप परमेश्वर में मजबूत रहोगे तो परमेश्वर के ऊपर आप टेक लिए हो और आपका कोई नहीं है, ये साबित हो जाता है। हालेलुया। 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे अब मैं तो अविवाहित हूँ और मैं तो भोग विलास की लालसा कर रही हूँ कि मेरी मैरिज हो जाए और मैं पति के साथ रहूँ, मेरे बच्चे हो जाए, ये अगर आपका है तो ये आपकी पर्सनल एम्बिशन हो जाती है। फिर आप क्या हो जाते हैं? जीते जी मरे हुए लोगों के समान जीवन जीने लगते हैं। ओके, इसको पसंद करेंगे, उसको पसंद करेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, इसको परखेंगे, उसको परखेंगे। आप परमेश्वर का प्रार्थना में लौलीन नहीं है, परमेश्वर के ऊपर आपको आशा रखने नहीं आ रहा है, परमेश्वर के ऊपर आप टेक नहीं ले पा रहे हैं। आपके अंदर की भोग विलास की पीड़ा आपको मरे हुए कामों में लेकर जाती है। फिर ओके, जीते जी यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन
जो उत्पत्ति के 6 अध्याय का 3 वचन कहता है वही हो गया फिर, है ना। आप पवित्र आत्मा को समय नहीं दे रहे, आप समय को लेकर इस्तेमाल कर रहे एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने के लिए, अच्छे प्रकार से ड्रेस करने के लिए, अच्छे प्रकार के मेकअप करने के लिए, अच्छे प्रकार के दिखने के लिए, अच्छे प्रकार से दूसरों की आंखों में आपका रूप बैठ जाए और आपको पसंद कर लिया जाए। उस भक्ति में आप जुड़ जाते हैं, शरीर की भक्ति में आप जुड़ जाते हैं। ओके, आने वाले समय के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए, मैरिज करने के लिए, जो चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, उस तरह का अपना रंग रूप बनाए रखने के लिए आप जुट जाते हैं। हाँ, तो ये हो जाता है, फिर आप क्या हो गए, भोग विलास की पीड़ाओं का शिकार हो गए। हाँ, तो आप क्या हुए, पवित्र आत्मा तो है अंदर, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हैं, शरीर के पीछे भाग रहे हैं। वो उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में पहले ही बोल दिया है। हाँ, मनुष्य तो केवल शरीर है ना। तो अब देखिए, जब मेरा मैरिज हो गया है, अब मेरे पति मेरे साथ नहीं है, तो मुझे विधवा का सा जीवन जीना है, ये मेरे समझ में आता है, और मैं ये जीवन वैसा ही जी रही हूँ, और परमेश्वर के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। ये मुझे दिन और रात सोते जागते मुझे पता है कि मेरा सहारा, मेरी प्रशंसा और मेरा सारा मन की तसल्ली होना परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, तो मेरे कारण आप सब लोग जो प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं, कमेंट करते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन क्यों आया ये थैंक यू? क्योंकि मैंने अपने पर्सनल प्रॉफिट को पीछा नहीं किया, शरीर का पीछा नहीं किया मैंने। हाँ, तो मैंने कहाँ पर आके अपना टेक ले लिया, परमेश्वर में प्रार्थना के साथ, विनती के साथ मैंने लौलीन हो गई, उसी के अंदर मैं अपने मन को छुपा लिया और अपने सारे हैसियत, प्रशंसा, तसल्ली, सब कुछ परमेश्वर के अंदर मैं देखती हूँ। आमीन। मैं अपने पर्सनालिटी में से कुछ प्राप्त नहीं करती हूँ। समझ में आया? तो इस कारण से भोग विलास मेरा पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं जीते जी मरी नहीं, लेकिन जीवितों के बीच में परमेश्वर के महिमा के काम कर रही हूँ। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा जीवन खतरों में कब जाता है, जब हम भोग विलास के पीड़ाओं में तड़पने लगते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सच बात है ये। मेरे जीवन में एकदम, मैं छोटे बचपन में थी, तो ये भोग विलास कोई उम्र देखकर नहीं आता है। ओके, आप स्त्री जाति में चेंज होने लगते हैं बचपन ही से, तो शैतान की आत्माएं आपको इस भोग विलास के कामों में डालना शुरू कर देती है। तो ये मत सोचिए कि मैंने जन्म लिया और बिल्कुल भोग विलास का पीछा नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने जवानी के समय में परमेश्वर को छोड़कर ऐसे ही सोच रही थी कि हाँ, मैंने ये अभ्यास किया है, मैंने ये परीक्षाएं दी है, मैंने ये अच्छा किया है, अब मेरा भी कुछ ठीक से मेरा रास्ता आगे जाना है और मैंने भी कुछ करना है, मैंने भी कुछ बटोरना है। बस थोड़ा बहुत मैंने भी अपना ध्यान अपनी फ्लैश की तरफ, अपने शरीर की तरफ बहुत कम समय लेकिन लगाया मैंने, बहुत कम। ओके, ज़्यादातर तो भोग विलास की आत्माएं मुझे सताने लगी थी। ओके, तो इसके लिए मैंने 10th स्टैंडर्ड में थी, तब भी मैंने 9th स्टैंडर्ड पास करते समय ही 10th में आने के बाद मैंने बोल दिया, मम्मी मुझे नहीं जाना है, आगे नहीं पढ़ना है, मेरा मैरिज कर दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सताया जाता है। मुझे दूसरे लोगों से, जो दूसरे लड़के रहते थे जो भोग विलास के प्यासे थे, वो मुझे सताते थे। ओके, तो इसके कारण मैं कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी। तो ऐसा समय रहता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोग विलास की आत्माएं हमारे पीछे पड़ जाती है। समझ में आया? और उनको निपटना हमको नहीं आया, तो हम भोग विलास के आत्माओं के शिकार हो जाते हैं, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, शरीर संबंध में हो जाते हैं। तो भोग विलास की आत्माएं तो हमारे शरीर के पीछे तो पड़ी ही रहती है, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर जीत पाया नहीं, तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, है ना। तो फिर हमारे अंदर का भोग विलास हमको हर प्रकार के गंदे अवसरों को देखने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा भोग विलास हमारे पवित्रता को खत्म करने के पीछे रहता है।
शुद्ध जीवन शुद्ध मन को खत्म करने के पीछे रहता है। ठीक है, तो जब मेरा समय ऐसा आ गया था कि मैं उद्धार में आ गई और फिर मेरे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था परमेश्वर के अलावा, तो मैंने ये देख लिया था। ओके, और एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे नहीं पता ये कैसा गुण था मेरे अंदर कि मैं बहुत छोटी उम्र, मुझे नहीं पता है, कुछ 3-4 साल के उम्र में ही से विधवा जैसा जो जीवन होता है वैसा ही मैंने जिया। मैंने कभी किसी का भरोसा नहीं रखा, मैंने सिर्फ देखा परमेश्वर मेरा भरोसा है, यीशु मेरा भरोसा है। यही मुझे बचपन में दिया गया हुआ था कि यीशु तेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो उसी के साथ तेरी दोस्ती रहनी चाहिए और कोई दोस्त नहीं बनना है। तो ये तो मेरे अंदर बैठ गया था और मैं उसी के साथ बहुत करीब रही। तो इसकी वजह से मेरा जीवन एकदम छोटी उम्र से ही विधवा का सा जीवन मैं जी रही थी। मैं कोई अपनी अभिलाषाओं के पीछे नहीं जा रही थी, कोई मेकअप के पीछे नहीं जा रही थी। हाँ, वो मेरा पीछा कर रहे थे। ओके, कोई लिपस्टिक लगाएगा तो मुझे भी लगता था हाँ मैं भी ऐसे रहूँगी। फिर कोई परफ्यूम्स यूज़ करेगा, फिर मुझे भी लगता था हाँ मैं भी ये परफ्यूम यूज़ करूँगी। कोई मेकअप करता था, लेकिन मेरा जड़ उसमें बन नहीं पाया। ओके, मैं और ज़्यादा बदसूरत लगती, मुझे खुद को नफरत हो जाता था अपने आप को देख के, ये क्या है। ओके, तो बहुत छोटे उम्र से ही मेरा जीवन में ये एक असर था कि मुझ में एक विधवापन सा जीवन ही मेरे साथ आता गया और मेरा चाल चलन बिगड़ा नहीं। ओके, भोग विलास की आत्माओं ने खदेड़ा मुझे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मुझे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रकार से मैं ख़त्म हो जाऊंगी इतना मुझे करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं। आज भी आप देख रहे मेरे अंदर का विधवापन का असर आपको मालूम पड़ रहा है, किस प्रकार से प्रार्थनाओं का असर है, किस प्रकार के वचन मुझे मिल रहे, किस प्रकार के वचन के ज्ञान मुझ में से बह रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर का भरोसा मुझ में फैल रहा है, किस प्रकार से डिवाइन हेल्पर्स मुझे मिल रहे, परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा मुझ में रहा है, किस प्रकार से अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ मैं जुड़ गई, कैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री के शब्दों से मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया था, कैसा ये प्रकार से आपको पता चल रहा है कि विधवापन का जीवन मेरा लाभदायी हुआ मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने कभी तरक्की नहीं की शारीरिक जीवन की ओर ध्यान देने का, मैंने तरक्की हमेशा इसमें की कि यीशु ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। तो भोग विलास मुझ पर असर नहीं रख पाया। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट एरिया ऑफ लाइफ है जो शरीर पीछा करता है भोग विलास का, तब हम जीते जी मरे हुए से हो जाते हैं। ठीक है, और जब मेरे जीवन में शादी करने का अवसर आया था तो एक समय ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था नहीं, जो विधवा का सा जीवन पसंद करता है वैसा ही इंसान कोई मुझे मिलना चाहिए। ओके, जिसको मैं विधवा हूँ तो मैं कैसे जीवन जीती हूँ वैसा ही कोई मेरे साथ होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि नखरे करो, मेकअप करो, ये करो, वो करो, ये वाला नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ऐसा ही मेरा डिमांड रह रहा था। ठीक है, इसके लिए फिर मैंने ऐसे इंसानों का पीछा किया जो परमेश्वर के जीवन में विधवापन का सा जीवन जीते हैं। हाँ, मेरी नज़रों में बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता था, मैं बहुत ज़्यादा उसको जल्दी से भाप लेती थी कि इसका जीवन विधवा का जीवन जैसा होता है, जैसा दनियल का जीवन रहता था वैसा इसका जीवन है। बहुत जल्दी मुझे उसकी सुगंध मालूम पड़ जाती थी कि ये ऐसा इंसान है, तो मैं तुरंत उसको पूछ लेती थी क्या आपको कुछ ऐसा सोच है कि आप मैरिज करना चाहते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए। मुझे इतना ही पता था मुझे मैरिज करना है तो मैं ऐसे इंसान से ही करना चाहूँगी जो विधवा जीवन के साथ जी रहा हो और खुद भी विधवा जीवन के अनुसार है और मुझे भी वो विधवा जीवन जीने की आज़ादी रखेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से मेरा ढूंढने का समय शुरू हो चुका था। मैंने भी ऐसे ही देखना शुरू कर दिया था, है क्या कोई ऐसा कोई इंसान है क्या। लेकिन जिसको मैंने पसंद किया वो तो ये वचन के अनुसार मुझे बहन जानकर पवित्रता में ही रख रहा था। ओके, और जिसको मैं पसंद नहीं कर रही थी, जो मैं देख रही थी, वो तो कभी दूसरे कोई मिले ही नहीं मुझे ऐसे कि मैं उसको पसंद करूं, ऐसा हो गया था। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता है कि हमारा विधवा होकर जीना लाभदायी है।
हाँ, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। मैंने तो नहीं जाना कोई बच्चे विधवा जैसा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि मैं खुद जी चुकी हूँ वो जीवन। बिल्कुल छोटे समय के अंदर से मैंने सीख लिया था, मुझे मिल गया था वो रास्ता, और मैंने बहुत आनंद भी किया था उस रास्ते को। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मुझे स्वीकारा नहीं गया दुनिया के अंदर। ओके, दुनिया के अंदर चकाचौंध होना चाहिए, चकाचौंध के साथ साथ दुनिया की बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए, चालाकियाँ होनी चाहिए, दुनिया के तरबेज होना चाहिए, तेज होना चाहिए। कम ऑन, ख़त्म करो। मेरे साथ तो हुआ नहीं, ये सारा चीज़ मैं नहीं कर पाई, मुझे हुआ भी नहीं। और मैंने यीशु को पकड़ लिया और मैंने बोला, देख भाई, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है कि मुझे जीना नहीं आता है, इस दुनिया के अंदर का चाल चलन तौर तरीका मेरे अंदर कुछ फिट एंड फिक्स नहीं होता है। अब ख़त्म कर दे ज़िंदगी को, मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, बिल्कुल नहीं। कोई तरक्की नहीं चाहिए, कोई उन्नति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चले जाना है इस दुनिया के अंदर से। मेरे लिए ये दुनिया नहीं है। ओके, मेरे लायक नहीं है ये, और मुझे इसके लायक बनना नहीं आ रहा है। तब यीशु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने आप को मुझ पर जाहिर किया। हालेलुया। और जाहिर किया तो इस वायदे के साथ जाहिर किया, तुम मेरे लिए जिएगी और मैं तुझे जीना सिखाऊंगा। और उसने मुझे विधवा का ही जीवन जीने का तरीका सिखाया कि उसके वचनों की शुद्धता और ज़्यादा बढ़ा दी मेरे अंदर, और ज़्यादा मजबूत हो गई मैं पवित्र जीवन जीने में। ठीक है, तो भोग विलास एक नाम के लिए रहा मेरे लिए कोई स्त्री जाति पुरुष जाति का अर्थ ही नहीं बनता है। वो सिर्फ एक नाम के लिए रहा, एक समय के लिए रहा, उसका कोई असर मेरा पीछा नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जी सकता है इंसान विधवापन का जीवन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जी सकता है, परमेश्वर करता है ऐसा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्या प्यारा वचन है, देखिए क्या लिखा है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे, यानी कलसिया में या विश्वासी जीवन में जब एक दूसरे के साथ आप हो रहे, तो आपने एक दूसरे को चेताना है इस बात से, क्या ऐसे ऐसे जीवन जीना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, इस तरह से पवित्रता में जीवन जीना है। ठीक है, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे। हाँ, वे निर्दोष रहे, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अब विधवापन का असर जो हम जीवन जीते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे घर की मम्मी मेरी बुजुर्ग है तो मैं ये कहूँ, अरे नहीं मैं तो सेविका हूँ और मैं तो बस मिशनरी काम के लिए मुझे बाहर जाते रहना पड़ता है, अब तो मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊँगी, नहीं अब तो मेरा मैरिज हो गया, अब तो मैं तेरे पास नहीं आ पाऊँगी। ऐसे करके अगर मेरे मम्मी के अकेलेपन में अगर मैं उसकी लाठी नहीं बनी, तो फिर मैं उसके लिए आधार नहीं बनी, सहारा नहीं बनी। जब उसका कोई नहीं अब दुनिया में, तो फिर मैंने उसका सहारा अगर नहीं बनी, उसके मन को मैंने समझा नहीं, उसके दुख की तसल्ली मैंने अगर उसको दिया नहीं, अगर उसके आंसू मैंने पोंछे नहीं, तो मेरे घर के अंदर का ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो मुझे निर्दोष नहीं रहने देता है। हाँ, तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ को निर्दोष रहना है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझ लेना है। हालेलुया। अगर मेरे घर के अंदर काम काज का असर कम है और फाइनेंशियली वीक है, तो मुझे उस तरफ भी अपने ज़ोर बढ़ाना है कि मेरी फैमिली, मेरा लोग, मेरे जीवन के लोग मेरे अंदर सुख और शांति को प्राप्त करे। ठीक है, अगर कोई भी हिस्से है जो कमज़ोरी में चल रहा है मेरे परिवार में, यानी मेरे मम्मी के साथ रहते हुए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैंने उसकी देखभाल करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी रहे, चाहे वो फाइनेंस रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, मैंने उसको प्रभु में ठीक तरह से सब कुछ मम्मी के हाथों में स्थिर करके शांति में रखना है।
है ना, उसको कहीं पर भी कुछ नुकसान होने नहीं देना है। हालेलुया, क्योंकि वो मालिक है, तो मैंने उसकी सेवा करनी और फिर उसकी सारी चीज़ों की देखभाल भी करनी है कि उसके आंखों के देखने में वह सब कुछ उसको शांति देने वाली रहे। हालेलुया, तो मेरा फ़र्ज़ मैंने पूरा करना है। तो इस प्रकार से अगर हमने नहीं किया तो हम क्या कर रहे हैं, विश्वास से मुकर रहे हैं। हालेलुया। 9 वचन से आगे, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पाँव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। यीशु मसीह ने बोला ना, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया, जब मैं कैद में था तू मुझे मिलने के लिए आया, जब मैं रोगी हुआ था तब तुम मुझे देखने के लिए आया। ये सब वो उसके चेले बोलते, अरे मैंने कब किया तुझे ऐसा, और तू कब बीमार था, और तू कब कैद में था, और तू कब भूखा था, अब और कैसे कब किया तूने। तो यीशु क्या कहता है कि जिन लोगों को तुमने ये किया वो तुमने मुझे किया। हालेलुया। जिन लोगों को तुमने ये किया वो तुमने मुझे किया। हालेलुया। तो इस प्रकार से, और दूसरे लोगों को उसने बोला, निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जब मैं बीमार था तुम मुझे मिलने नहीं आए, जब मैं दुखी था तुम मेरी तसल्ली करने नहीं आए, जब मैं रो रहा था मेरे आंसू पोंछने के लिए नहीं आए, जब मैं भूखा था मेरी भूख मिटाने के लिए नहीं आए, तो तुम निकल जाओ मेरे सामने से। तो वो लोग बोलते, कब हमने तुझे देखा है ऐसा? हाँ, कब तू भूखा था कि हम तुझे खिलाने के लिए आ जाए? हमने तो कभी तुझे देखा नहीं, रोगी था बिस्तर पर पड़ा है कि हम तुझे मिलने के लिए आए। तू क्या कह रहा है ये कि हमने तुझे ये सब नहीं किया? तू था ही नहीं वैसा, तो हम क्यों आए तुझे ऐसा करने के लिए? तू कैसी आशा कर रहा है हमसे ऐसे करने की? ओके, तो यीशु बोलता है, जहाँ लोग ऐसे हो रहे थे तो क्या तुम उनकी सुधि लेने के लिए गए थे? अगर नहीं गए थे तो तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हालेलुया। तुम मेरे देखभाल करने के लिए नहीं आए। वहाँ पर मैं था तुम लोगों के सामने, लेकिन तुमने मुझे वो देखभाल नहीं की, वो सुधि नहीं ली जो उस समय उन लोगों की ज़रूरत में रह रहा था। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, गेट आउट। हालेलुया। तो ये तरह से हमारा परमेश्वर है कि हमको आंखें देता है, इसकी ज़रूरत है, कम ऑन गो गो गो, उसको कुछ तो अच्छी चीज़ों से भर दो। ओके, फिर बताता है, ये लोग हैं, जाओ 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 उनके लिए प्यार के 2 शब्द बताओ। फिर दूसरी जगह, जाओ 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 उनको ये गीतों से तृप्त करो, ये गीत उनको सुनाओ, ये उनकी तसल्ली करेगा, उनके आंसू को पोंछेगा। फिर कहीं बता रहे कि देखो देखो ये वचन देखो देखो, बोलो बोलो बोलो, उनके अंदर चंगाई आ जाएगी, है ना। तो हमको परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है जो लोगों की सुधि लेता है। आमीन। तो हम भले काम करने वाले सुनाम है। ओके। हालेलुया। 11 वचन से आगे पढ़ेंगे। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह के विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ के घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती है और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। डेंजरस जोन। हाँ, भोग विलास की आत्माएं क्या क्या काम करवाती है देखो आप, है ना। जो विधवा बन चुके हैं, एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सचमुच में जवानी के समय में अच्छा उसका भोग विलास उसके अंदर मजबूती से बन गया और फिर उसका पति मर गया या उसके पति ने उसको छोड़ दिया। अब पहले तो वो भोग विलास में तड़प रही थी और फिर उसको पति मिला, फिर पति छोड़ दिया, अब भोग विलास की चर्चा उसको सता रही है।
है ना। तो इस चर्चा में वो क्या कर गई, अपने आप को दे दिया, हाँ, और वो क्या बन गई फिर, सच्चाई के विरोध में चली गई, हाँ, वो सच्चाई के विरोध में चली गई। वो दूसरी शादी के लिए मन लगा ली, वो सोचने लगी जाने दो, ये नहीं तो ये नहीं, कोई बात नहीं है, हम दूसरी शादी कर लेंगे। अपना मन भोग विलास के अनुसार उसने सुनना शुरू कर दिया, हाँ। वो मन जब भोग विलास में भरा हुआ रहता है तो बहुत बेकार बातें बोलता है, हालेलुया। उस क्या बताता है, जा दूसरे से शादी कर ले, ओके। क्या और क्या बताता है, जा दूसरों के विरोध में जाके कुछ गंदे काम कर ले, ओके। क्या बताता है, जा दूसरों के पतियों को अपना कर ले, हाँ। नहीं तो क्या बताता है, जा दूसरे पत्नियों को छेड़छाड़ कर ले, हाँ। नहीं तो क्या बताता है, जाओ वेश्याओं के पास जाओ, हाँ। भोग विलास की आत्मा बहुत गंदे गंदे काम बताती है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ऐसे काम करवाएगी जिसको बक बक करना, आलसी होना, हाँ, हर प्रकार के गंदे कामों के साथ साथ फिर अपने शरीर की अवस्थाओं का भी बिगाड़ कर रखना, गंदे दोस्तों को बनाना, गंदे मजाक उड़ाना, ओके, अनुचित बातें बोलना, किसी के बदनामी की बातें बोलना, किसी के कमी घटियों को ठट्ठों में उड़ाते हुए लोगों के बीच में उसको बदनाम करते जाना, हालेलुया। और जहाँ पर उसका अधिकार नहीं है उसमें जाकर अपने अधिकार के हाथ डाल देना, हाँ। वहाँ पे जाके किसी कोई घर की बातें हो तो उस बात के अंदर खुद जाके मसले सॉल्व करते बैठना, ओके। कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, उसको तो ऐसे ही करना चाहिए, उसको तो वैसे ही करना चाहिए, उसको तो यही करना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जब आपका अधिकार नहीं है उस घर के अंदर जाकर आपकी बुद्धि दिखाने की, तो बंद करना है। हमारे अधिकार थोड़ी है उस किसी के घर में जाकर किसी के मसलों को हल करना, हालेलुया। तो ये अनुचित हो जाता है फिर, ओके। लड़ाई झगड़े लगा देना, एक दूसरे के विरोध में उठा देना, ओके, किसी के घर परिवार को बिगाड़ने वाले रास्ते देना, ठीक है, ये सब अनुचित हो जाता है, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ इतना है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा बता रहा है, वो रो रहा है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो रो रहा है, जा उसकी तसल्ली कर, तो हम उस घर में जा सकते हैं। और उसकी तसल्ली करने के लिए हम परमेश्वर जो कहेगा उतना काम हम करके लौट के आ सकते हैं, हाँ। अगर कोई बताएगा हमको परमेश्वर का आत्मा की देख ये है ना, ये एरिया ऑफ लाइफ, इसके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, तो जाके उसको ये एरिया ऑफ लाइफ को सुधार लाने की बातें बता, सिखा, तो वो सुधर जाएगा। तो हमको उस घर में जाके दखल देना पड़ता है और उसके बारे में परमेश्वर के वचन जो कह रहे हैं हमको, वो उनके जीवनों में भर के आना पड़ता है। तो हम दूसरों के घरों में जाते हैं, लेकिन केवल तभी जाते हैं जब परमेश्वर चाहता है उनके सुध ही ले, हाँ, ताकि परमेश्वर वो भले कामों में गिनती करे, आमीन। लेकिन कुछ ऐसे विधवा है जो जवानी के अभिलाषाओं में फंस जाती है, सुख विलास में पड़ जाती है और इस प्रकार के गंदे कामों में भटक जाती है। 14वां वचन, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करे और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी के को बदनाम करने का अवसर न दे, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे, हालेलुया। तो देखो, अगर कोई बुजुर्ग है और आपको शिकायत है उसके बारे में, उसको कैसे निपटना है, इसका वचन 19 वचन है। अगर कोई पाप करके आपके विरोध में चल रहा है तो उसके बारे में कैसा निपटना है, 20 वचन में लिखा है, हालेलुया। और जब सेवा कोई करता है तो उसका अगर उसको किसी ने ब्लेस किया कोई भी बातों से, तो आप उसका जलन नहीं करना है, ना ही उसको दोष देना है, क्योंकि ठीक है, वो उसने अपना रिवॉर्ड ले लिया,
है ना। तो वो रिवॉर्ड परमेश्वर को सौंप देगा, लेकिन उसको रिवॉर्ड देने वाले से आपने घृणा नहीं करना है और ना ही रिवॉर्ड लेने वाले से घृणा करना है। 21 वचन से आगे, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। देखिए, मन खोल कर आज्ञा पालन कर कहा है, यानी मन के अंदर एक ऐसी जगह मत रख कि अरे मैं ये आज्ञा पालन करूंगी तो मेरा तो फायदा नहीं होगा कुछ भी नहीं। मन खोल कर, यस टू यस, नो टू नो। ओके, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है हाँ में हाँ हो जाना है, जो परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है ना में ना हो जाना है। ठीक है, और पक्षपात नहीं करना है कि ये लोग मेरे साइड के हैं तो मैं इनके सामने ये वचनों को छोड़ दूंगी और वो वहाँ पे अरे नहीं मुझे तो वचन पालन ही करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं करना है। हम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, वचन के अनुसार रहना है। आमीन। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। इंग्लिश में जब हम पढ़ रहे थे ये वचन के विषय में मैंने आपको समझा दिया है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन फिर भी आपको पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर भरी रहना है और आप फिर भी ऐसे अवसर आते हैं हाथ रखने के, रख सकते हैं, लेकिन आग से भरकर रखना है ताकि उनकी अशुद्धता जल जाए और आपकी शुद्धता, पवित्रता जीवन उनके अंदर उंडेला जाए। जैसा यीशु मसीह ने कहा, मेरे कपड़े को किसने छुआ? तो पतरस चिल्लाकर बोला, अरे क्या बात कर रहा है, कपड़े को कौन छुएगा, ऐसा कौन बता सकता है? इतनी भीड़ की भीड़ तुझ पर गिर रही है, तो कैसे तू एक इंसान को उसमें से चुन के बता सकता है कि ये वाला है करके? ओके, तो वो कहता है, अरे नहीं, भीड़ के छुअन अलग है, लेकिन जो मेरे अंदर से सामर्थ निकली एक वो छुअन है जो मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अंदर से निकलना चाहिए परमेश्वर के सामर्थ और लोगों के जीवन बदल जाना चाहिए। तब आप उनके ऊपर हाथ रखे हो तो उनके जीवन बदलने वाले हो जाना चाहिए। हालेलुया। 23 वचन से आगे, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिपा नहीं सकते। हालेलुया। तो आप ज़रूरी नहीं है कोई बुरा करता रहेगा और आपके सामने उसका कुछ न्याय नहीं हुआ इसका मतलब परमेश्वर उसकी ओर से है, नहीं, ज़रा भी नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज के दिन उसके ऊपर न्याय नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसकी तरफदारी में है। हालेलुया, नहीं, उसका गुनाह का दंड उसका पीछा करता है, तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा, वचन कहता है ऐसा। ठीक है, तो न्याय तो है ही है, कुछ का जल्दी आ जाता है, कुछ का थोड़ा देरी हो जाता है, लेकिन न्याय तो होता ही है बॉस, है ना। तो इसके लिए पाप से डरना है, पीछे हट जाना है, नहीं करना है पाप। ओके, पाप हमें ढूंढ लेता है और फिर पाप का हमें वेतन भी है मृत्यु, है ना। मृत्यु यानी सब कुछ नाश होने वाली बातों में हमको होकर गुजरना पड़ता है। वैसे ही अच्छे कामों के बारे में है, कुछ तो अच्छे काम दिखाई देते हैं, लोगों प्रशंसा कर लेते हैं उसका, लेकिन और भी कुछ ऐसे काम है जो दिख तो नहीं रहे लेकिन छिप भी नहीं सकते हैं दिखे बिना रहे भी नहीं सकते। जो अभी दिख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी नहीं दिख रहे वो दिखने वाले हैं, इंतजार रहे। हालेलुया। तो पापों का पनिशमेंट्स का भी इंतजार है। अगर अभी नहीं मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मिल रहा है उनको पापों का पनिशमेंट, डोंट वरी तो मिलना तो है ही है ओके, वैसे ही भले काम शायद अभी कुछ दिख रहे लेकिन बाकी नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं है, उनको तो दिखना ही दिखना है। हालेलुया। तो आपकी प्रशंसा तो होनी ही होनी है अगर आप भले ही भले जीवन जी रहे हैं तो। आमीन। प्रभु यीशु इन सारे वचनों से हमारी उन्नति कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर ज्ञान बुद्धि समझ के वचनों से हमें नए सिरे से ऊंचा कर लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद, हमारे अंदर ईश्वरीय रचना को लाने के लिए धन्यवाद, हमारे अंदर डिवाइन ऑर्डरलीनेस को बना रहा है, इसके लिए धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।